Assalamu alaikum, dear students. Today is the fifth lecture of laws of motion, and in this class we'll be discussing Newton's second law of motion. ठीक सिंपल वैसे अगर इस पन्निस पतमिस क्लास कुन त्राव नजर पन्निस पतमिस क्लास में हेच linear momentum that could define linear momentum as the linear momentum has to go simply the quantity of motion possessed by a body, and this linear momentum is denoted by p. This linear momentum is the vector quantity which is given by the product of mass and velocity. Simple. अगर सब कोई body हुन mass to m बेश करन move with velocity v, m body हुन linear momentum has to m into v, and the direction of p is same as that of v. Simple. The linear momentum of a body should depend on the mass and velocity. Simple. With the common sense, अगर कोई body हंस velocity is change करो, अमिक linear momentum थी change. ठीक simple. Linear momentum क्या शो असल? Product of mass and velocity. Simple. ये हम साथ linear momentum समझाओ तब बात करें but define Newton's second law of motion. Newton's second law of motion, it states that which one is the rate of change of linear momentum of a body is proportional the rate of change of linear momentum of a body is proportional to the applied force यानी कि rate of change of linear momentum has to depend करना है, has to proportional का applied forces is directly proportional to applied force. यानी कि यूता इससे ज़्यादा force apply करो, यूता के linear momentum ज़्यादा change, यूता इससे कम करो, यूता के linear momentum कम change. ठीक? Is directly proportional to applied force, and this change always takes place. Occurs in the direction of applied force. This is the statement of Newton's second law of motion. Newton's second law of motion क्या है? It states that the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to applied force, and this change always takes place in the direction of applied force. ठीक? यानी कि you see rate of change of linear momentum चू यहाँ से चू proportional क्या? Force applied forces. ठीक? यानी कि यूता ज़्यादा force करो applied कोई body पे यूता है सके ज़्यादा m body में momentum change. ठीक? यूता कम करो यूता के कम change. ठीक? तो base change यहाँ से always given in the direction of applied force. For example, ठीक? वैसे बकर काम ये चीज़ समझने खातिर कर काम. Suppose ये एक body. Suppose this is a body. Suppose ये body करने काम एमिक mass जो m तो बेश करने move with velocity u. ठीक? Simple. Suppose the body of mass m moves with velocity u. Simple. वैसे अगर भाई ये बॉडी हंस कट कर ये बॉडी हंस मोमेंटम ये ना मास इनटू वेलोसिटी सो ना m इनटू u. सिंपल बजन करा काम अगर ब mc बॉडी पे का फोर्स f करने अप्लाई. ठीक? सपोज आई एम अप्लाइंग ए फोर्स f ऑन द बॉडी. ठीक? इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. फॉर एग्जांपल यानी कि यह डायरेक्शन में ये बॉडी मूव करने डायरेक्शन में कर बे इस बॉडी पे का फोर्स अप्लाई. ठीक? यम साथ का फोर्स इस बॉडी पे ते डायरेक्शन में अप्लाई कर या डायरेक्शन में ये बॉडी मूव करन तेल करना ये बॉडी तेल गना वेलोसिटी इंक्रीज. सपोज after some time
द बॉडी मूव्स विथ वेलोसिटी v सपोज कुन टाइम बाद यम साथ में इमिस पे कहां फोर्स अप्लाई कर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ठीक क्योंकि वी नो इन दिस केस द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस ठीक सपोज आफ्टर सम टाइम डेल्टा t द बॉडी मूव्स विथ वेलोसिटी v यम साथ ही बॉडी मूव कर विथ वेलोसिटी v तेल क्या बनो यथ केस में मोमेंटम यथ केस में बनो बॉडी हुन मोमेंटम m into v यतस क्या हो m into u टाइम मतलब वो ये में बॉडी हुन मोमेंटम को चेंज ये बॉडी हुन मोमेंटम क्या को चेंज यथ केस में चूंकि अप्लाइड फोर्स द मोशन ऑफ द बॉडी च एक्स डायरेक्शन में यथ केस में एस मोमेंटम फाइनल मोमेंटम एस ग्रेटर देन इनिशियल मोमेंटम ठीक न्यूटन सेकंड लॉ मोशन छ वनन हे युस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम छु या सा छु प्रेथ साथ आसन प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स यानी कि यूता ज्यादा इस कोई बॉडी पर फोर्स अप्लाई करो त्यूता ज्यादा एम बॉडी हुन मोमेंटम चेंज त्यूता ज्यादा किस मोमेंटम चेंज इंक्रीज गसे या डिक्रीज गसे या से डिपेंड कर फिट अप्लाइड फोर्सेस पर अगर इस अप्लाइड फोर्स ते डायरेक्शन में थाओ या डायरेक्शन में बॉडी मूव करन तेल गेस ऑटोमेटिकली एम बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज एम से एम बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज अप्लाइड को एम लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज सिंपल अगर वो यह अप्लाइड फोर्स कर है अप्लाई एमसी बॉडी पर इन दिस डायरेक्शन इन द डायरेक्शन to the opposite of the motion of the body ठीक तेल गेस ना velocity अगर us final velocity is v मगर ये vs in this case ये u खुद काम ये साथ पर इस बॉडी पर काम फोर्स अप्लाई कर in the direction opposite to the motion of the body for example force of friction ठीक सिंपल तेल गेस ना ये बॉडी हुन velocity क्या किस काम ये साथ एम बॉडी हुन velocity किस काम मास सेम ये हुन प्रोडक्ट यानी कि लीनियर मोमेंटम किस काम ठीक एंड एक या डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर यह छ न्यूटन सेकंड लॉ मोशन या डायरेक्शन में से फोर्स अप्लाई करो तो डायरेक्शन में से लीनियर मोमेंटम ते चेंज यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड दिस चेंज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स सिंपल बे वन linear momentum क्या go linear momentum is product of mass and velocity it is a vector quantity simple and Newton's second law of motion state is that the rate of change of linear momentum of a body कोई बॉडी हुन rate of change of linear momentum हसा छु directly proportional या छु proportional to the applied force यानी कि युता ज्यादा से इस पर फोर्स अप्लाई करो तो ता हसा के ज्यादा एनी बॉडी हुन मोमेंटम चेंज अगर ते डायरेक्शन में करो तेल गेस या डायरेक्शन में मूव करन तेल गेस मोमेंटम इंक्रीज अगर इस अपोजिट डायरेक्शन में करो तेल गेस मोमेंटम डिक्रीज ठीक सो यू ना दिस चेंज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड अगर भाई ये डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर मोमेंटम कैसा कैसे डायरेक्शन में चेंज अगर भाई ये डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर मोमेंटम कैसा कैसे डायरेक्शन में चेंज ठीक ये उनके न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन या बह कित के बनित ठीक है मैथमेटिकली आई कैन राइट यह लिखन बो मैथमेटिकली आई कैन राइट dp/dt is directly proportional to f यानी कि dp/dt क्या को rate of change of p rate of change of linear momentum is directly proportional to f या इतके क्या बोले time rate of change of linear momentum is directly proportional to force applied ठीक simple this is Newton's second law of motion ठीक this is Newton's second law of motion ठीक Newton's second law of motion states that the time rate of change of linear momentum is directly proportional to force applied ठीक वैसे आइशना कुछ मैथ्स में या फिजिक्स में जेम साथ इसका प्रोपोर्शनलिटी चेंजेस करने इक्वालिटी में आइश पे वन mc कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो which implies that dp/dt is equal to k where k is constant into f एक प्रोपोर्शनलिटी के चेंज इक्वालिटी मिलती है ये सासन इस प्रोपोर्शनलिटी इसको नहीं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो वो dp/dt का बराबर है k into f but in SI and CGS units SI system as CGS system as the unit of force is chosen such that k is equal to 1 यानी कि SI सिस्टमस में तो CGS सिस्टमस में चीज फोर्स को यूनिट तितकन चूज करन ताकि m k को वैल्यू इस 1 हो ठीक m साथ k is 1 when k is equal to 1 तो लेस ना ठीक है dp/dt का बराबर
dp/dt बराबर तिल fs, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू 1. ठीक, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के जो ना रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड. ठीक, सिंपल. एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. ठीक, कुछ सर यम साथ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ आओ, नाउ वी कैन डिराइव relation between, now we can derive a relation between force, force F and acceleration A. Now we will derive Newton's second law of motion समझ आओ, वहाँ कुछ आराम से derive relation between force and acceleration. ठीक है सर. According to Newton's second law of motion, dp/dt is equal to f. Rate of change of momentum when k is equal to 1, rate of change of momentum dp/dt का बराबर शो f. ठीक, सपोज बकर गम, सपोज initially a body of mass m moves with velocity u. सपोज बकर गम बनी बॉडी अख मतलब है ये बॉडी हसा छु यमिक मास छु m यह हसा छु इनिशियली कर मूव विथ वेलोसिटी u. ठीक, सपोज सिंपल यम साथ बॉडी मूव करन विथ वेलोसिटी u, मास छु m इनिशियली बोन तिल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज मास इनटू वेलोसिटी, सो वो m इनटू u. सिंपल तिल बनो m बॉडी उन इनिशियल मोमेंटम का बराबर m इनटू u. ठीक, सपोज बकर गम बजन कर काम बकर mc बॉडी पे का फोर्स अप्लाई. सपोज a force F is applied on the body for small time delta t. सपोज कुछ टाइमस खतर, सपोज स्मॉल टाइम इंटरवल्स खतर कर बकम. अगर ये फॉर एग्जांपल लिखिए ये तो समझो, सपोज बॉडी एमिश वहां से सपोज इनिशियली शी बॉडी का मूव विथ वेलोसिटी. ठीक, सिंपली तेल के मैंने इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी. ठीक, सपोज बगर mc बॉडी पर का फोर्स f अप्लाई फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा t. वैसे एम साथ ms बॉडी पर का फोर्स अप्लाई करे mc वेलोसिटी क्या गस चेंज, चाहे या डायरेक्शन में करस इंक्रीज गस या डायरेक्शन में करस डिक्रीज गस, यानी कि सिंपल वर्ड्स में बनाओ वेलोसिटी विल डिक्रीज. ठीक, सपोज आफ्टर टाइम डेल्टा t the body moves with velocity v. ये बॉडी है सच मूव करन विथ वेलोसिटी v. ठीक, सिंपल तेल बनना अब pf तेल बनो ना एनी बॉडी हुन फाइनल मोमेंटम m इनटू v. ठीक, m इनटू v जो was initial momentum ये क्या was final momentum. बजा बचा change in momentum. Therefore change in momentum. Change in momentum छु ना pf minus pi. Final momentum minus initial momentum. ठीक, सिंपल. सुगुणित लेके थस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम सुगुण है सुगो का बराबर फाइनल मोमेंटम को एम वी बेगोस माइनस एम यू सुगुण है पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू यमन दोनों एम कॉमन सुगो वी माइनस यू. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है देयरफॉर यहाँ बहग ना लिखी थे ये डेल्टा पी बहग लिखी दिए थे क्या डेल्टा पी फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन मोमेंटम वो डेल्टा पी नेर बराबर तिलकर
m इंटू v माइनस u, ठीक। चूंकि ये चेंजेस फॉर टाइम t, देयरफॉर देखिए देयरफॉर डेल्टा p बाय डेल्टा t आइस ना बराबर m इंटू v माइनस u डिवाइड बाई डेल्टा t। सिंपल, हाँ देखिए, हाँ डेल्टा p बाई डेल्टा t क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम वाज डेल्टा t, हाँ ये क्या नहीं या सो क्या m इंटू v माइनस u डिवाइड बाई डेल्टा t, ठीक। ये कितने रहा ना डेल्टा p बाई डेल्टा t का बराबर रहा m इंटू v माइनस u बाई डेल्टा t। सपोज इक्वेशन नंबर 1 न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन छो ना यहाँ पे है लिखे अगर डेल्टा t इज वेरी स्मॉल लिमिट dp बाई dt ने ना दिल बराबर dp बाई dt ने ना बराबर m इंटू v माइनस u बटा dt। सिंपल, हाँ अगर इस डेल्टा t में हमारा स्मॉल चेंजेस dt, ठीक। dp बाई dt का बराबर है m इंटू v माइनस u डिवाइड बाई dt, विच इम्प्लाई दैट यहाँ देखिए, हाँ देखिए फर्स्ट मगर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन छो ना dp बाई dt बदले है ना लिखित f, विच इम्प्लाई दैट, हाँ f ने बराबर चूंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स, dp बाई dt बराबर बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन को m इंटू v माइनस u डिवाइड बाई डेल्टा t। ये है ना लिखित विच इम्प्लाइज दैट f इज इक्वल टू m इंटू v माइनस u डिवाइड बाई डेल्टा t। ये है ना f इज इक्वल टू m अगर इस ये टर्म में कौन तरह नजर देखो ना v माइनस u वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई डेल्टा t को चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम क्या गई एक्सेलरेशन को ये बार है a लिखित वो तेरे ना लास्ट से प्रूव f इज इक्वल टू ma, सिंपल। वो v माइनस u क्या गो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी की चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम को एक्सेलरेशन, देयरफॉर f इज इक्वल टू ma। यहाँ इन वेक्टर फॉर्म f इज इक्वल टू ma क्योंकि f वेक्टर a वेक्टर, ठीक। तेल है ना लिखित f इज इक्वल टू ma वो तेल को प्रूव बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसको प्रूव फोर्स शासन बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये शुन पाने बिजती न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की ये कोर डिराइव बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन छु द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एमएस एग्जाम्स में डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तत लिखो ना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज f इज इक्वल टू ma की तत लिखो इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, time rate of change of linear momentum is directly proportional to applied force and this change always takes place in the direction of applied force। till क्या बनी है relation between f and a, f is equal to force शासन बराबर mass into acceleration। वैसे ये से relation छु ये हकन बो येम खोद simple तरीके से मुझे derive करी, ठीक। for example ऐसा बता according to Newton's second law of motion dp by dt is f, we know जैसे p को ना अगर बॉडी में मास m वेलोसिटी v p को ना mv, ठीक। तेल है ना लिखित d बटा dt f d बटा dr p बदले mv m इंटू v जो बराबर f। यहाँ पे है ना लिखित f इज इक्वल टू d बटा dt ऑफ m इंटू v, ठीक। वैसे तेल है ना लिखित f इज इक्वल टू फोर्स ना यमन दोन करूँ एक m इंटू v से करें डिफरेंशिएशन चूंकि ये जो दोन पानों में प्रोडक्ट है बकर यूज प्रोडक्ट रूल, ठीक। वो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज वो m रोज इथे गेट v एस गए कासे करें टाइम से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड dv by dt, ठीक। प्लस सेकंड एज इट इज सेकंड क्या है v इंटू dm by dt, dm by dt क्या वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वही सब अगर हम सपोज m is constant, ये साथ m constant होते लिखना लिखे f is equal to m into dv by dt plus v constant है टाइम से कोई चीज़ से डिफरेंशिएशन 0, ठीक। तेरे ना लास्ट है f is equal to m dv by dt को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम से क्या वो एक्सेलरेशन वो तेरे को ना लास्ट है प्लस 0 तेरे को लास्ट से दे प्रूव फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। मगर
यस ये फार्मुला ऑलवेज ट्रू आसान कि तम सात ट्रू ये सात अक बॉडी हुंद मास मोशन मज कांस्टेंट रोज ठीक ये सात बॉडी मूव कर अगर तमिक मास कांस्टेंट आसान तेल हेको तम बॉडी खतर तमिस बॉडी खतर यूज कर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ठीक मगर अगर यमिस रिलेशन त्रा नजर दिस रिलेशन इज ऑलवेज ट्रू यस ये रिलेशन न्यूटन सेकंड लॉ मोशन ऑलवेज होल्ड्स दिस ऑलवेज होल्ड्स मगर यस रिलेशन एफ इज इक्वल टू एम ए तमी वैलिड यम सात जन कुछ बॉडी हुंद मास मोशन मज कांस्टेंट आस ठीक वुच सर हर कुछ बॉडी हुंद मास यम सात कह बॉडी मूव कर ठीक अमुक मास हर सात कांस्टेंट रोजान कह ठीक फॉर एग्जांपल मगर चूंकि अगर ये क्लास त्रा नजर ठीक ये क्लास मजन ऑब्जेक्टन मोशन स्टडी करो ठीक तिहज वेलोसिटी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट यानी कि तिहज वेलोसिटी कम as compared to the speed of the light then according to Einstein's theory of relativity ठीक तिमन बॉडी हुंद मास गस तूत ज्यादा कह therefore we can use F is equal to ma we can say that the mass of these objects is constant ठीक मगर यम साथ का ऑब्जेक्ट मूव कर with the velocity comparable to the speed of light यम साथ का ऑब्जेक्ट मूव करन with the velocity comparable to the speed of light तम साथ अम बॉडी हुंद मास कांस्टेंट रोजन कह यह गसन इंक्रीज तम साथ एफ इज इक्वल टू एम ए वैलिड कह तम साथ करो यूज एफ इज इक्वल टू एम ए कह ठीक या फॉर एग्जांपल अगर बह रॉकेट निमन ठीक सपोज दिस रॉकेट यह रॉकेट ठीक यम साथ कह रॉकेट लॉन्च कर ठीक यह यह बैकवर्ड डायरेक्शन में स्मोक इजेक्ट कर ठीक यम साथ स्मोक इजेक्ट कर यानी कि फ्यूल अंदर बर्न गसान तेल अम बॉडी मास कम गसान यम साथ मूव कर ठीक वो यीचन हन बॉडी खतर हेको एफ इज इक्वल टू एम यूज कर यीचन हन बॉडी खतर एफ इज इक्वल टू एम वैलिड कह मगर न्यूटन सेकंड लॉ मोशन इज ऑलवेज वैलिड न्यूटन सेकंड लॉ मोशन एफ इज इक्वल टू एम कह यह द्राव यह गोज डिराइव बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ मोशन मगर न्यूटन सेकंड लॉ मोशन पान द रेट ऑफ change of linear momentum is directly proportional to applied force and the change always takes place and this change always takes place in the direction of applied force ठीक simple वह सर तेल अगर बह न्यूटन सेकंड लॉ मोशन कुन त्रा नजर न्यूटन सेकंड लॉ मोशन वो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ठीक वह सर ये रिलेशन से करो ये रिलेशन से हेको ना तेल आराम सान यम रिलेशन से हेको तेल आराम सान फोर्स डायमेंशन मालूम कर तेल हेक ना बह लिखित फोर्स डायमेंशन मास गो m एक्सेलरेशन गो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम वेलोसिटी एक वेलोसिटी क्या गो डिस्टेंस बाय टाइम वेलोसिटी का डायमेंशन डिस्टेंस कम से थावन एल से लेंथ बटा सेकंड सो ना एल एस माइनस 1 वेलोसिटी क्या गो डिस्टेंस अपन या डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम ठीक एक्सेलरेशन क्या गई एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपन टाइम वेलोसिटी ना एक वेलोसिटी ना यूनिट टाइम गो पर सेकंड टाइम गो सेकंड यम साथ भी और खड़ा ये ना एस माइनस 1 सो गो एस माइनस 2 एल इंटू एस माइनस 2 ठीक यहाँ एस गो टी एस इस कारण क्या ये टाइम हावन टी से ठीक गो वेलोसिटी हिंद डायमेंशन क्या एल टी माइनस 1 ये गो वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2 गो यमिस क्या फोर्स एम एल टी माइनस 2 गो एम एल टी माइनस 2 द डायमेंशन ऑफ फोर्स आर एम एल टी माइनस 2 सिंपल तो अगर भाई यम फोर्सेस को त्रा नजर द यूनिट्स ऑफ फोर्स अगर भाई यूनिट्स दिस द डायमेंशन ऑफ फोर्स एम एल टी माइनस 2 ठीक वही सर अगर भाई यूनिट्स को त्रा नजर यूनिट्स ऑफ फोर्स there are two main units of force आगो absolute बैगो gravitational क्या गो number 1 is absolute बैगो gravitational so there are two main units of force absolute and gravitational ठीक use the absolute unit of force
the units of force क्या है absolute तो gravitational ठीक you see absolute unit of force chu in SI system the absolute unit of force is in SI system the absolute unit of force is और तो तीन जाने हैं Newton is not the n यानी कि हाँ absolute system in the absolute system में जो ऐसा है हाँ unit of force कुछ हो Newton ठीक वैसा वजन करा करूँ बकरा आख Newton force defined देखिए आज ना पता force बराबर mass into acceleration मैं करूँ आख Newton force defined ठीक वैसा वजन कर करूँ force को value कैसे नियर 1 वो ये था सिद्धि में 1 ये था सिद्धि में 1 गो देखिए नियर ना the force आख Newton force को तको the force which produces a unit acceleration yem sat is movan so ka the force user unit acceleration kare produce temis body mas yem body kun mass is 1 kg tem si force is chase wana ya go ak Newton force ke go 1 Newton force is that much force which produces an acceleration of user produce kare acceleration of ak meter per second square in a mass of 1 kg तेमिस मासस ये में वजन चुका था 1 kg mass of 1 kg ठीक यानी कि आख न्यूटन फोर्स गो the force which produces an acceleration of आख meter per second square in a mass of 1 kg यानी कि अगर कोई बॉडी हुन मास is 1 kg तो बात करो से इस पर का फोर्स अप्लाई जिगर एम बॉडी has acceleration produce 1 meter per second square we say that the applied force is 1 newton simple so absolute system as SI system of unit क्या SI system में क्या बने unit of force न्यूटन ठीक गो आख न्यूटन को ना एक है आख न्यूटन को ना ते आख kg 1 kg मास गो आख kg acceleration को 1 meter per second square सुको ना 1 kg meter per second square 1 kg meter per second square ठीक अगर ये CGS सिस्टम उसको तराव नजर CGS सिस्टम में छु एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स को छु डाइन इन CGS सिस्टम द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन उसे डाइन क्या को सिंपली फ्रॉम F इज इक्वल टू m CGS सिस्टम में मास यूनिट ग्राम एक्सेलरेशन यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड ठीक सिंपल ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड यानी कि the amount of force which produces an acceleration of 1 centimeter per second in the mass of 1 gram यानी कि 8 ग्राम मास युद्ध फोर्स जरूरत लगे 8 सेंटीमीटर पर सेकंड एक्सेलरेट करने खातिर तम सी चीज बन यह सब बनो आकडाइन वो आकडाइन फोर्स क्या वो सिंपली द फोर्स रिक्वायर्ड टू accelerate a body of 1 gram by 1 centimeter per second square 1 centimeter per second square centimeter per second square ठीक वैसे अगर इस न्यूटन से डाइनस आप रिलेशन करो न्यूटन तो डाइन आप न्यूटन छासन 1 न्यूटन छासन 10 raised power 5 डाइनस कुछ कहीं वैसे तिकैज वैसे ये छु ग्राम ये क्या छु केजी आ ग्राम को ना या आ केजी को ना 10 raised power 3 ग्राम इनटू ये छु सेंटीमीटर ये छु मीटर एक ये छु सेंटीमीटर ये छु मीटर वो 10 raised power 2 सो ना 10 raised power 5 वो आख न्यूटन को था 1 न्यूटन इज 10 raised power 5 डाइनस ठीक वो ये बनियो these are the units of force न्यूटन एंड डाइन these are the units of force in absolute system ठीक वैसे वहाँ अगर इस ग्रेविटेशनल सिस्टम उसको तराव नजर ग्रेविटेशनल सिस्टम उस मंचू कितो ही मार्क ग्रेविटेशनल यूनिट्स in terms of gravitational units the units of force are kilogram weight and gram weight
1 kg weight and दोयमा कुछ 1 gram weight वैसे 1 kg weight कोता गो 9.8 न्यूटन 9.8 न्यूटन 1 kg weight को 9.8 न्यूटन 1 kg weight 9.8 न्यूटन तो 1 ग्राम वेट गो 1 ग्राम वेट गो 960 न्यूटन सॉरी 1 ग्राम वेट गो 960 डाइन 960 डाइन 1 ग्राम वेट को गो 960 डाइन ठीक वैसे अगर भी मिस ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिटस को त्रा नजर यह प्रैक्टिकल सिस्टम मगर ये साथ कुन ति केसस में कुन ति सवालस में आंसर आइस करो विल बी यूजिंग केस नंबर 1 विल बी यूजिंग एब्सोल्यूट यूनिट एसआई सिस्टम ठीक गो 1 न्यूटन क्या गो 4 मेजर करना न्यूटन में से डायन में से 1 न्यूटन गो 10 रेज पावर 5 डायनस 2 न्यूटन क्या गो 2 into 10 रेज पावर 5 डायनस ठीक या हाफ न्यूटन क्या गो 10 रेज पावर 5 divided by 2 डायनस ठीक सिंपल so this was all about